हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 368, कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 20, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 20, संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन कैसे होता है, उसकी जो एक विशेष प्रक्रिया होती है, उसके बारे में ये अनुच्छेद 368 बताता है। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, यानी 368 says about the power of parliament to amend the constitution and procedure therefore. Number 1, notwithstanding anything in the constitution, parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation or repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article. Number 2, an amendment of this constitution may be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house of parliament, and when the bill is passed in each house of a majority of the total membership of that house, and by a majority of not less than 20 thirds of the members of that house present and voting. It shall be presented to the President, who shall give his assent to the bill, and thereupon the Constitution shall stand amended in accordance with the terms of the bill, provided that if such amendment seeks to make any change in number A, Article 54, Article 55, Article 73, Article 162 or Article 241, or number B, Chapter 4 of Part 5th, Chapter 5th of Part 6th, or Chapter 1st of Part 11, or C, any of the lists in the 7th schedule, or D, the representation of states in parliament. Number D, the representation of states in parliament, or number E, the provisions of this article. The amendment shall also require to be ratified by the legislatures of not less than one half of the states by resolutions to that effect passed by those legislature before the bill making provision for such amendment is presented to the President for assent. Number 3, nothing in Article 13 shall apply to any amendment made under this article. Number 3, nothing in Article 13 shall apply to any amendment made under this article. Number 4, no amendment of this constitution, including the provisions of Part 3rd, made or purporting to have been made under this article, whether before or after the commencement of section 55 of the Constitution, 42nd Amendment, Act 1976, shall be called in question in any court or any ground. Number 5, for the removal of doubts, it is hereby declared that there shall be no limitation whatever on the constituent power of Parliament
to amend by way of addition, variation, or repeal the provisions of this constitution under this article. अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ। संविधान का भाग 20, संविधान का संशोधन। संविधान का भाग 20 बताता है संविधान का संशोधन कैसे होगा, उसके बारे में। अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी, संसद की शक्ति है। यानी संविधान में किसी भी अनुच्छेद के अंदर संशोधन करना होता है, बदलाव लाना होता है या उसमें परिवर्तन करना होता है, तो ये संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है वो किसके पास है, संसद के पास। तो संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। नंबर 1, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। नंबर 2, इस संविधान के संशोधन का प्रारंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनर्स्थापित करके ही किया जा सकेगा। सबसे पहले जब संविधान के किसी उपबंध का संशोधन करना हो तो उससे पहले की क्या प्रक्रिया है, संसद के किसी सदन में एक प्रयोजन के लिए विधेयक पुनर्स्थापित करना होगा। और जब विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा, और तब संविधान उस विधेयक के निर्बंधों के अनुसार संशोधित हो जाएगा। परंतु यदि ऐसा संशोधन नंबर का अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241 में या खंड खा भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5 या भाग 11 के अध्याय 1 में या नंबर गा 7वीं अनुसूची की किसी सूची में या घा संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में या इस अनुच्छेद के उपबंधों में कोई परिवर्तन करने के लिए है, तो ऐसे संशोधन के लिए उपबंध करने वाला विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले उस संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित, यानी कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों द्वारा उन विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा। नंबर 3, अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। नंबर 4, इस संविधान का जिसके अंतर्गत भाग 3 के उपबंध हैं, इस अनुच्छेद के अधीन संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 55 के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात किया गया तात्पर्य कोई संशोधन किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। नंबर 5, शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि इस अनुच्छेद के अधीन इस संविधान के उपबंधों का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन करने के लिए संसद की संविधायी शक्ति पर किसी प्रकार का निर्बंधन नहीं होगा।
अगला मेरा वीडियो होगा भाग 21, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, पार्ट 21, टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट्स प्लीज़। जय भीम।